Disha Salian's father, Satish Salian, in his petition and also in the FIR, which he has registered with Mumbai Police, and the petition that he has filed in Bombay High Court, which is coming up for hearing on the 2nd of April. They have made allegations against certain media organizations and media persons. They have named them also. The charges are that they tried to be part of the narrative that was being set by the state government and the accused. वो एक्यूज जो इनका नाम इनके इस केस में आ रहा था या सुशांत सिंह राजपूत केस में आ रहा था, उनके फेवर में नैरेटिव सेट करने का इन्होंने काम किया और इन्होंने गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन का रूट चेंज किया, उसको कॉन्क्रेटाइज करने में हेल्प किया. सो दे हैव नेम्ड these people in the petition and FIR and have sought their action against them. अब ये कौन लोग हैं? ये मीडिया हाउसेस जिसका नाम लिया है दिशा सालियान के फादर सतीश सालियान ने अपने FIR में, and they have sought action against these organizations and individuals, include India Today, News Laundry, Rajdeep Sardesai, and certain other media organizations like Live Law and other things. इन सब लोगों का इन्होंने नाम डाला है और कहा है कि इनके खिलाफ एक्शन लीजिए. They said that certain media houses, including India Today, News Laundry, Live Law, and journalists like Rajdeep Sardesai, have played a deliberate and unethical role in misguiding the public by engaging in scripted interviews, false and one-sided narratives, and conspiracy theories solely intended to glorify the accused persons. These media entities did not adhere to journalistic ethics but instead acted with an ulterior motive to create confusion, intimidate witnesses, and mislead the general public to shield Riya Chakravarti and Aditya Thackeray from legal scrutiny. रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए इन लोगों ने ये नैरेटिव सेट किया ताकि उन पर कोई आंच ना आए. That these media houses and reporters should be held legally accountable and be made co-accused in this case. This is what they have written in the petition. But in the FIR, they have demanded that police should register the case under 120B, which is criminal conspiracy, and IPC, other provisions of IPC, as their actions were part of a coordinated effort to manipulate public perception, suppress the truth, and obstruct the course of justice. That News Laundry in particular aired an interview featuring Rohan Rai and Satwant Singh, which is Disha Salian's friend, which was a dishonest and deliberate attempt to falsely portray that Disha's death was a suicide. This was done despite the existence of substantial evidence suggesting foul play. The same modus operandi was used in the case of Sushant Singh Rajput, where misleading narratives were propagated with the clear intention of diverting the investigation away from the real culprits. That direct the initiation of criminal proceedings against these media houses and individual journalists under Section 120B of the IPC and Section 10 of the Indian Evidence Act for actively collaborating with the accused to obstruct justice. ये पिटीशन में दिशा सालियान के फादर ने लिखा है. बहुत सारे सवाल अर्नब गोस्वामी को लेकर उठे थे जब अर्नब गोस्वामी पर वो केस हुआ था और कहा गया था कि किसी ने अर्नब गोस्वामी का सपोर्ट नहीं किया था, कोई खड़ा भी नहीं हुआ था. लेकिन आप जब क्रिटिकल केस ऑफ क्रिमिनल नेचर, उसमें जब भी आप जो कुछ भी करते हो, वो अगर एक पर्टिकुलर साइड, किसी का साइड, इंडिविजुअल का साइड ले रहा है, एक जनरल कवरेज इज डिफरेंट फ्रॉम डूइंग अ इंडिविजुअल थिंग. और अगर दूसरे पार्टी को लगता है कि ये ऑब्जेक्शनेबल है तो ऑब्वियसली वो ऐसा कर सकता है. मीडिया पर्संस का मोटिव नॉर्मली नहीं होता है, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, चाहे वो राजदीप सरदेसाई हो, या कोई भी जर्नलिस्ट हो, चाहे मैं हूं. हमारा कुछ पर्सनल मोटिव नहीं होता है. हमको न्यूज चाहिए होता है. हमको लगता है ये करने से हमारा न्यूज लोग ज्यादा देखेंगे, लोग हमको ज्यादा सुनेंगे,
तो हम वो चीज करना चाहते हैं दूसरों से पहले जिसको लोग ढूंढ रहे हैं। तो जो न्यूज में होता है उसको हम सबसे पहले कैप्चर करना चाहते हैं। अब उसमें बहुत सारी चीजें ऐसे हो सकती हैं जो दूसरों को सूट ना करे, ये हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मीडिया हाउसेस या जर्नलिस्ट का कोई पर्टिकुलर इंटेंशन है टू टारगेट समबडी। आई डोंट थिंक दैट्स द केस। अगर किसी ने एक्स पर्सन का इंटरव्यू लिया, किसी ने वाई पर्सन का इंटरव्यू लिया, तो वो एक पर्टिकुलर रीजन से हो सकता है। इट कैन बी बिकॉज द पर्सन इज कनेक्टेड, पर्सन इज गेटिंग द इंटरव्यू। किसी को भी अगर उस वक्त रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू मिल रहा होता तो वो लेता ही लेता इंटरव्यू। किसी को भी अगर दिशा सालन के फादर का इंटरव्यू मिल रहा होगा तो वो लेगा ही लेगा। किसी को भी अगर इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में आदित्य ठाकरे अगर कल कुछ बोलना चाहे और कोई इंटरव्यू वो देने को तैयार हो पर्टिकुलर जर्नलिस्ट को, तो जर्नलिस्ट इंटरव्यू करेगा ही करेगा, क्योंकि वो उसका काम है। अब इसमें आप मोटिव ढूंढेंगे तो देयर इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज एक जर्नलिस्ट का मोटिव क्या हो सकता है? हाँ, इन पर्सनल कैपेसिटी, आउट ऑफ द कैमरा, अगर कोई लिख रहा है किसी के बारे में, किसी के को लेकर और लगातार लिख रहा है और लगातार टारगेट किए चला जा रहा है इंडिविजुअली, नॉट रिलेटेड टू द केस, एक केस के रेफरेंस में फैक्ट्स रिलेटेड अगर लिख रहा है फिर तो कॉन्टेक्स्ट है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, विदाउट कॉन्टेक्स्ट अगर कोई कुछ भी लिखा जा रहा है पर्सनल नेचर का या अदरवाइज, जिसका स्टोरी उस केस से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर देन देयर इज अ मोटिव इन्वॉल्व। उस केस में ऐसा हो सकता है कि आपके अगेंस्ट में कोई एक्शन हो। क्यों? क्योंकि आपका जो भी लिखा हुआ था, जो बोला हुआ था, जो शो था, वो पर्सनल नेचर हो गया, वो पर्सनल टायरेड हो गया, पर्सनल वेंजेंस हो गया, नथिंग टू डू विद अ पर्टिकुलर केस। किसी में आपका कॉन्टेक्स्ट ही नहीं था, न तो सुशांत सिंह राजपूत केस डिस्कस हो रहा था, न दिशा सालन केस डिस्कस हो रहा था, फिर भी आपने टारगेट कर दिया। ये हो सकता है। लेकिन अगर किसी कॉन्टेक्स्ट में आकर आप कुछ कह रहे हैं, हम सब लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं, हम भी बहुत सारी चीजें कहते हैं जो बहुत लोगों को सूट नहीं कर सकता है, बट दैट डजंट मीन दैट वी विल स्टॉप सेइंग नो, बिकॉज वी आर जर्नलिस्ट। हमारी बहुत सारी बातें बहुतों को अच्छी लगती है, कल फिर उसी आदमी को जब हम दूसरी बात कहते हैं तो उसको अच्छी लगती है, फिर वो भूल जाता है। लेकिन जब तक हम उसके अगेंस्ट में बोलते हैं वो उसको पसंद नहीं आता है। ये एक नॉर्मल कहानी है। सो आई थिंक व्हेन इट कम्स टू द मीडिया हाउसेस and individual journalists, it has to be very carefully seen. क्या उनका रिपोर्टाज, उनकी एंकरिंग, उनकी स्टोरी, उनके शोज क्या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थे? वॉज इट ऑफ अ पर्सनल नेचर, कंप्लीटली डिसकनेक्टेड फ्रॉम द स्टोरी, और वॉज इट कनेक्टेड टू द स्टोरी? इफ इट इज कनेक्टेड टू द स्टोरी और उस स्टोरी से रिलेटेड किसी इंडिविजुअल का इंटरव्यू कर लिया, किसी के बारे में लिखा, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो फिर आपका उनके अगेंस्ट में एक्शन लेना या सोचना वो थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। तो मुझे लगता है इट कैन बी इमोशन, बट लॉजिकली आई डोंट थिंक जर्नलिस्ट विल हैव एनी पर्सनल इंटेंशन इन डूइंग सर्टेन थिंग्स, बिकॉज वो उसका काम है। अदरवाइज हर जर्नलिस्ट कोई भी केस में रिपोर्ट नहीं करेगा। ऐसा होगा क्या कि अगर कोई केस ऐसा हुआ जिसमें विक्टिम एक्चुअली इनोसेंट है, सस्पेक्ट एक्चुअली इनोसेंट है और उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, तो इनोसेंट आदमी भी मारा जाएगा। मीडिया है ही इसलिए कि आपकी आवाज सब तक पहुंचा सके, सही या गलत कोई तो सुनेगा। मीडिया सुनता है, जुडिशरी नहीं सुने, पुलिस सिस्टम नहीं सुने, पॉलिटिकल नहीं सुने, तो मीडिया सुनेगा। क्यों? क्योंकि हमारा कोई बायस नहीं है, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो भी कुछ भी कहना चाहता है हम उसको सुनने को तैयार है, लेकिन जो हम सुनते हैं उससे किसी और को तकलीफ हो सकती है। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि चलो मैं भी सुना देता हूं। अगर आपको मना करे कोई, ठीक है मैंने इसका इंटरव्यू किया और जो दूसरा पार्टी है उसका इंटरव्यू मैं नहीं करूंगा, तब तो देयर इज अ प्रॉब्लम। देन तो देयर इज अ लॉजिक टू टेक एक्शन कि आई रिफ्यूज्ड, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी इंटरव्यू विद सुशांत सिंह राजपूत फैमिली। If you go on that, if you take that position in writing officially, then तो there is a case made out. But अगर रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू कर रहे हैं और वो फादर का भी इंटरव्यू कर रहे हैं या फैमिली का इंटरव्यू कर रहे हैं या केस से रिलेटेड लोगों का इंटरव्यू कर रहे हैं, फिर तो बैलेंस आउट हो गया, फिर इंटेंशंस प्रूव करना बहुत मुश्किल है। सो मीडिया को लेकर थोड़ा सा थिन लाइन है। यू हैव टू थिंक, यू कैन नॉट स्टॉप द मीडिया,
बिकॉज इफ यू स्टॉप द मीडिया, कल आपको ही इसका नुकसान होगा। अब क्योंकि सोशल मीडिया बढ़ गया है, मेरे ऐसे जर्नलिस्ट जो कल तक टेलीविजन चैनल्स में एक्टिव थे, प्रिंट में एक्टिव थे, आज इंडिविजुअली चला रहे। क्यों? ये हमें ज्यादा फ्रीडम देता है, हमें कोई रोकता नहीं है, हमको बोलता नहीं है कि आप ये मत बोलो, हम खुल के बोल पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया का एडवेंट हो गया। तो सोशल मीडिया ने मेन स्ट्रीम मीडिया को दबा दिया है, बहुत कमजोर कर दिया है। सोशल मीडिया पर बैठे हुए लोगों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सोचना चाहिए कि आप कुछ भी मत चला दीजिए, आप सोच समझ के चलाइए, बिकॉज आपका कहा हुआ हर एक वर्ड किसी के जिंदगी को इफेक्ट करता है, किसी के लाइफ को इफेक्ट करता है। तो थोड़ा केयरफुल रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप कुछ गलत बोल जाएंगे तो आपके गलत बोलने से कोई आदमी का बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। सो सोशल मीडिया इज बोथ बून एंड अ नेगेटिव। सुशांत ने बोला ना कि इट कैन बी both positive and it can be negative. If you use it in a correct manner, then it's a sword which can benefit you. If you use it in a negative manner, it's a sword which can harm you. So this is a two-edged sword, media. अब दोनों तरफ से नुकसान हो सकता है। अगर इसका सही इस्तेमाल हुआ तो फायदा होगा, और गलत इस्तेमाल हुआ तो नुकसान हो जाएगा। तो सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कीजिए, गलत इस्तेमाल मत कीजिए। हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, हमारा कोई मोटिव नहीं है। वी आर हियर to speak about those who want us to speak. चाहे वो सूरज दुबे हो, चाहे वो सीआरपीएफ कमांडो हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत हो, चाहे वो दिशा सालियान हो, चाहे वो जिया खान की मदर हो, कोई भी हो, वी आर हियर टू लिसन टू एनीबडी हु वांट्स अस टू बी देयर वॉइस। अब किसी को पसंद नहीं आ रहा है, ये उनकी प्रॉब्लम है। सो इन टर्म्स ऑफ बोथ अर्णब गोस्वामी एंड राजदीप सरदेसाई, आई फील the action against Arnab Goswami was unjustified. People should have stood by him because ultimately he was a journalist and he had nothing personal about it. Obviously, it's a story. He will like to highlight it to take his channel forward. That's the professional part of it. लेकिन पर्सनल कुछ नहीं, पर्सनल किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। वैसे ही राजदीप सरदेसाई का वो प्रोफेशनल पार्ट है कि उन्होंने एक इंटरव्यू किया टू टेक द चैनल अहेड, टू ग्रो प्रोफेशनली। इट्स फाइन, आई एम डूइंग द शो टू टेक द platform ahead, take myself ahead and take your voice to the people. That's my professional job. इसमें पर्सनल कुछ नहीं, जब पर्सनल आएगा तब परेशानी है। तो इसको थोड़ा सा रीजनेबली सोच के देन यू शुड टॉक अबाउट द मीडिया पार्ट ऑफ इट। अदरवाइज मीडिया पे अगर लगाम लगाने लगे, ऑलरेडी बहुत सारे लगाम हैं, ऑलरेडी बहुत कम लोग हैं जो न्यूट्रल बात करते हैं, हु कैन फ्रीली कम एंड स्पीक अप। कभी कोई दबा रहा है, कभी कोई दबा रहा है, किसी का नाम दबा रहा है, किसी का। तो ऐसे में आपको मीडिया के को सपोर्ट करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को सपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि वो फियरलेसली बात आपकी पहुंचा सके आप तक। वरना अगर दबा देंगे, लगेंगे और बोलेंगे कि अगर बोलोगे तो केस कर देंगे, बोलोगे तो एफआईआर कर देंगे, तो क्या होगा कि एक बार एक आदमी रुकेगा, फिर दूसरा रुकेगा, फिर तीसरा रुकेगा, अचानक मीडिया एलिमिनेट हो जाएगा। तो बगैर नारद जी के तो दुनिया नहीं चली ना, वहां भी नारद जी हैं, तो हम लोग तो वही हैं। हम तो पहुंचे इसलिए हैं ताकि हम आपकी आवाज वहां और उनकी आवाज आप तक पहुंचा सके। तो इस मीडियम को इंटैक्ट रहने दीजिए, वरना अगर नारद जी को सिस्टम से हटा दिया तो फिर भगवानों के बीच लड़ाई हो जाएगी, और यहां से अगर जर्नलिस्टों को हटा दिया तो फिर कंप्लीट क्योस हो जाएगा, कोई सुनने वाला नहीं होगा, आप लोग दर दर भटकते रहेंगे, टोटल ऑटोक्रेसी हो जाएगी। और फिर जर्नलिस्टों के बाद उस वक्त अगर आप वापस आ भी गए तो जर्नलिस्ट एक बार सिस्टम से खत्म हो गए तो फिर वो दोबारा सिस्टम क्रिएट होगा नहीं। सो फोर्थ पिलर जो बोलते हैं ना, दे हैज टू बी प्रोटेक्टेड, प्रमोटेड एंड सिक्योर्ड, अदरवाइज it will go not benefit anybody and it will go haywire. So my point is that in case कोई भी केस हो, कितना ही सेंसिटिव हो, कितना ही इमोशनल हो, view journalists from the point of view of a journalist and not from individual. So these I don't agree. In case of Arnab Goswami, the action that was taken by the then Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray और मिस्टर राजदीप सरदेसाई, जिनको लेकर अब रिकमेंडेशन की एक्शन लो, मुझे लगता है थोड़ा सोच समझ के रीजनेबली करना चाहिए, बिकॉज जर्नलिस्टों को रोकने से फायदा कम, नुकसान ज्यादा है। ऑन दैट नोट आई टेक लीव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।